بچے ڈرے ہوئے ہیں, بچے ٹھیک سے بتا بھی نہیں پا رہے, ایک مشکل ہے میڈیا فیس کرنا, پھر اس طرح ظلم ہو جانا, پھر اس طرح کی بات بتانا. بتائیں کہ کیا آپ بتا رہی تھیں؟ یہ 2-3 میرے ماموزاد کی بیٹیاں ہیں اور ایک میری کزن کی. ہاں جی, یہ گھر سب ایک ساتھ ہیں, سب ایک خاندان. کیا آپ بتا رہی تھی کہ یہ دونوں بچے جو قرآن, یہ دونوں بچی ایک 9th میں پڑھتی ہے, ایک 7 میں پڑھتی ہے, یہ قرآن پاک کے لیے جاتی تھی اور یہ بتاتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا, ایک باہر کھڑی ہوتی تھی اور ایک اندر ہوتی تھی کمرے میں اس کے ساتھ, مطلب کہ اور دونوں کو دھمکایا بھی جاتا تھا دکھا کے ایک دوسرے کا فگر کہ یہ میں اس کے ساتھ بھی کر رہا ہوں, تمہارے ساتھ بھی کیا ہے, اگر تم لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا تو تمہیں بھی مار دیں گے, تمہارے خاندان کو بھی مار دیں گے اور تمہاری ویڈیو بھی وائرل کر دیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے بتایا کہ دونوں بچیوں کو ایک ساتھ نیچے بھیجا جاتا تھا کام کرنے کے گھر جاتا, وہ خود بلاتا تھا میرے کپڑے پریس کروا دو. پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر وہ جا کے نیچے پکڑ لیتا, ایک سیڑھیوں میں بٹھا دیتا تھا, کبھی کبھی دروازے کے پاس بٹھا دیتا تھا, کھڑا کر دیتا تھا کہ تم دیکھو اوپر سے کوئی آ تو نہیں رہا, اور ایک بچے کو ساتھ لے جاتا تھا, اس کی ویڈیو بنا کے دوسرے بچے کو دکھاتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے, اور اگر تم نے کچھ کیا تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اگر تم نے اس کے بارے میں بتایا یا تم نے اس کے بارے میں بتایا تو یہ ایشو ہوگا. دونوں بچے تو بڑے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ کسی سے بات بھی نہیں کر دیکھیں نا, اب 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ اب انہوں نے اسکول چھوڑ دیا, قرآن پاک چھوڑ دیا, پھر ان کو دباؤ دیا گیا کہ کس وجہ سے بتاؤ نا, تو انہوں نے پھر بتایا. ویسے بڑی ہمت کر کے بتایا ہوگا بچوں نے. بچہ ڈر جاتا ہے کہ میں اپنے والدین کو کیا بتاؤں, مجھے والدین مجھے برا بلا کہیں گے, مجھے ماریں گے. جی. پھر اس بچی نے اپنی بہن سے ڈسکس کیا, وہ ٹیچر ہے, دونوں بچیوں کی بہنیں ٹیچر ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو تمہیں پڑھانا چاہتے ہیں لیکن آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ ہی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, میں نے نہیں جانا ہوتا, نورانی بھی نہیں پڑھنا اور اسکول کا بھی نہیں میں نے پڑھنا. پھر اس نے بتایا, میں نے کہ اس نے پوچھا کہ اور کون کون انمول, انہوں نے اس بچیوں کا نام لیا اور بچیوں کا بھی نام لیا. اچھا, اور وہ آگے نہیں آئے. اور بچے بھی ہیں؟ ہاں جی, وہ آگے نہیں آئے. آپ لوگوں کے گھر میں تو ایک دم قیامت برپا ہو گئی. ہاں جی, یہ ایک ہی ہمارے خاندان کی یہ 4 بچیاں ہیں, تو دیکھ لیں ان کی ماں کا حال, دیکھ لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے. یہ بچے کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, 4 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਈ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਸ ਬੱਚੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ. ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਮਾਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ. ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ. ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. ਸਹੀ. ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਟਾਫਟ. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲੀਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜੇ. ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ. ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਢੀ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਗਈ ਉਹਦੀ? पता नहीं वो किंच दौड़ गई. तो जिस टाइम उसके बंदे को पकड़ा वो घर जिस दिन बच्चियों ने बताया मंगल का दिन था, बुध को हमने सारे इकट्ठे हुए हैं, सबसे मशवरा किया और चुप की थे. इधर से इसकी ना ये 11 की बोतलें बढ़ती थी. कौन? ये आदमी जो बोतलों का काम करता था, स्कूल भी था, अच्छा, कैंटीन भी थी, अच्छा, और उधर करता था. उधर से हमने पकड़ा दिया, किसी को पता नहीं चला. हमने खामोशी से
पुलिस के साथ एचआर साहब के साथ रब्ता किया, उसको पकड़ा दिया। उसकी बीवी घर थी, हमें पैगाम भेजती रही है मामी जान को, मैं इधर ही मौजूदा थी, क्या कहती थी? कि आओ बात सुन के जाओ, मैंने तुम्हारी बच्चियों को तालीम दी है, मेरी बात क्यों नहीं सुन के जा रही। हमने कहा कि इधर से कोई भी नहीं उसके घर जाएगा, क्योंकि मामलात गर्म थे, उधर नहीं जाएंगे हम। तो जब तक पुलिस के पास हम पहुंचे हैं, कार्रवाई शुरू हुई है, उन्होंने रेट मारी तो वो भाग चुकी थी। अच्छा, वो भाग चुकी थी। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि उसके मोबाइल से 150 वीडियोस निकली हैं, उनमें ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ बच्चों की वीडियो होगी, जैसे बता रहे हैं कि इनकी भी वीडियो बनाता रहा, तो आपने पुलिस वालों को कहा कि ये वीडियो ज़रा ज़ाया करवा दें, मतलब कि कल को बच्चों के फ्यूचर का मसला है? नहीं सर, ये तो बात हुई थी, सबसे पहले बच्चियों ने जब बताया ना कि हमारी वीडियो बनाता रहा, हम सब अपने मर्दों को कहा है कि सबसे पहले उसका मोबाइल अपनी रियासत में ले। हाँ, उन्होंने ले लिया। जब मैं गई हूँ तफ्तीश के, इनके बच्चियों को मैंने ही गाइड किया, तब उधर उसका मोबाइल खोला गया, लेकिन वो लॉक नहीं था खोला, उसकी पिटाई हुई, फिर उसने खोला, उसमें से देखे। कितने और बच्चे हैं? बच्चियों ने आपको बताया? हमें नहीं दिखाया। नहीं, बच्चे कितने और हैं आपकी जो ये बच्चियां बताती हैं, नाम लेती हैं, लेकिन हम कितने और हैं? 8, 10, 15? 7 बच्चियां और हैं। 7 और हैं? हाँ 5 जी, ये सात हैं, हैं। 7 और हैं, जिनके कि नाम ये बताती हैं। और इसके अलावा भी कहीं होंगे 8 साल से वो ये जी। स्कूल चला रहे हैं। सर हमें नहीं पता उसकी बीवी का कसूर है या नहीं है, लेकिन एक बच्चा ऊपर से आ रहा है, जवान बच्ची है, उसका मियाँ बुला रहा है, तो उसको ये तो पूछ सकती थी ना क्या वजह है, क्या काम है, मुझसे पूछो। नहीं, बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने बताया भी है उसको। ये बच्ची सबसे छोटी है, ये भी मेरे मामू की बेटी है। इसकी उम्र क्या है? 11 साल। हाँ जी। इसको भी तंग करता रहा बहुत, और इससे काम भी सारा किचन का करवाते थे, सारा काम करवाती थी वो औरत। हाँ जी। तो आप लोग क्यों ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ वो नौकरानी की तरह पूरे घर का? बस वो हमें तो ये था कि वो अच्छे लोग हैं, तो अच्छाई करते करते उन्होंने इतनी बड़ी बुराई कर दी, हमें तो इल्म ही नहीं था कि ऐसे वो करेगा। आप लोगों के पैरों से जमीन निकल गई होगी। हम तो बस मियाँ बीवी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होंगे, आंखें नहीं मिला पा रहे होंगे, क्या होगा? ऐसे ही है हम, ऐसे ही। अब तो अंदर चले गए हैं कमरे में, हमारा दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का। 11 साल की बच्ची है ये, 11 साल की छोटी सी बच्ची है यार। बच्चों जैसे बच्चे होते हैं यार, आपके घरों में नहीं बच्चे यार। उसकी बेटी भी थी हमारी बेटी जितनी, उसको शर्म नहीं आई इतना ये काम करने में। पास कमरे में बैठी होती थी उसकी बेटी, तो वो सामने कमरे में होता था, चवल इंसान। वो आपके बच्चों के साथ कर रहा है तो उसकी अपनी बच्ची भी महफूज नहीं है। मैं यहाँ अब पे ये कहते हैं अल्लाह से कि उसकी भी ना बेटी ऐसे हो, ऐसे ही हो उसकी बेटी। अल्लाह ना करे जी हो उस खबीस इंसान की। दिल दुखता है हमारा जब हम अपनी बेटियों को देखते हैं, कि उनके वालिद को देखते हैं, रिश्तेदार को देखते हैं, हमें बहुत दिल दुखता है। उसकी अपनी बता रहे हैं, अपनी कितनी बेटी है उसकी? एक कितने ये सोफिया की जितनी है, मतलब कि 12-13 साल की? 12-13 साल की उस खबीस इंसान की अपनी बच्ची है। अगर उसके घर लोगों की बच्चियां महफूज नहीं है ना, तो मैं ये 100% कहता हूँ कि उसकी अपनी बच्ची भी उस दरिंदे से महफूज नहीं होगी। और मैं रियासत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि उसकी बच्ची को रेस्क्यू कर लें। हमें भी बस इंसाफ चाहिए और उसको सजाए मौत हो, बस हमारा दिल यही कहता है कि हमें वैसे नहीं सुकून मिल रहा। अच्छा, ये बच्चे ने भी आपको नहीं बताया? नहीं, सबसे पहले तो वो इकरा ने बताया उसने ना? बताया। तो ये फिर बाकियों ने कैसे हिम्मत की? कैसे आप लोगों तक बाकी कैसे इसकी कहानी बड़ी सिस्टर है मामू की बेटी, उसने ना अच्छा, ये सारे बच्चे आपस में रिश्तेदार भी हैं? हाँ जी, ये मामू की बेटी है, ये मेरे भाई की बेटी है दो। ठीक है, ठीक तो है। उसने फिर ना पूछा कि सब बेटा आप भी बताओ जरा कि क्या हुआ। फिर उसने बताया कि ऐसे होता था, तो उसने बोला तुमने मामा को क्यों नहीं बताया, चलो बता देते। हाँ, टाइम से पता लग जाता। आप ही हमें इस का अंदाजा नहीं था कि ऐसे कुछ हो जाएगा। वो शख्स भी सर ऐसे लगता था कि जैसे कितना मासूम है वो, अच्छा, पर अंदर से इतना शैतान है ना कि जो वो तो पूछे आप ही ठीक ना। कह रहे हैं कि लोगों के हुलिये और काम और होते हैं। आप मुझे बताएं, 60-70 बच्चे इनके अलावा पढ़ते थे? नहीं, इनको डाल के 60-70 बच्चे थे, जिनमें बच्चे भी थे, ये बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे। कुछ नरानी कायदा पढ़ने आते थे, कुछ स्कूल का करने। ये बच्ची भी स्कूल पढ़ती थी, ये भी स्कूल पढ़ती, वो दोनों नहीं पढ़ती। हाँ जी। उसने ये भी शर्म नहीं की कि कुरान पढ़ने आ रहे हैं हमारे घर, कुरान दीन सीखने आ रहे हैं? उसने कहा कि मैं जरा सी भी ना शर्म कर लूं, कुछ लिहाज से उसने कुछ भी नहीं रखा। तो माओ को देखे हमारा दिल करता है ऐसे इधर आके बताए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
हम तो वो दिन के ना शर्म से ना अंदर ही है, पर दिल ही नहीं करता बाहर निकलने में। बाजी आज आने का मकसद यही था कि एक तो आप लोगों ने हिम्मत की, उसकी सलाम है आपको, ताकि लोगों की बहनों बेटियां जो हैं वो बच सकें, इससे इबरत पकड़ सकें, वो देख सकें कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा आने का मकसद ये था कि जो दीगर बच्चों के वालिदैन हैं उन्हें पता लग जाए कि इस तरह के मामला भी होते हैं। अब ये वो दौर नहीं रहा जहाँ पे उस्ताद जो है फरिश्ते हुआ करते थे, हाँ जी, लोग अपने वालिदैन की इतनी इज्जत नहीं करते थे जितना उस्ताद ही किया करते थे। बड़ी इज्जत दी थी उसको इंसान को, पर उसको ना रास नहीं आई। लोग अपने बच्चों की शादियों में उस्तादा बुलाया करते थे कि ये इस बच्चे का रूहानी बाप है और ये रूहानी माँ है और इसने इसको तरबियत दी है। ये देखें अब ये कहाँ तक बात पहुँच गई, किस तरह के शैतान लोग शोबा तलीम के साथ मुंसलिक हो के इसका लिबादा और के बच्चों को जो है हैवानियत का निशाना बना रहे हैं। अच्छा अम्मा जी जरा दसो तुहानू सब तो पहले दसिया सी बच्चे ने आके जी ये मेरी इकरा बेटी जाती सी कुरान पढ़ने, तो मैंने पूछा आप क्यों नहीं जाते, तो कहनी अम्मी मेरा दिल नहीं चाहता। मैं कहा क्यों, कोई वजह दस ना, प्यार ना, नहीं मैं नहीं दसना। ने कहा दस तेन कुछ नहीं आंदे सी मार देने। फिर उन्हें दसिया, उन्हें कहा इकरा तू कली है, झूठ ना बोली। उन्हें कहा नहीं आप ही मेरे नाल ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। उन्हें कहा नहीं आप ही सोफिया भी ये आसिया भी ये सबा ਇਹ भी। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ जी ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं वो फिर मेरी बेटी ने की ना इन्हू, मैं क्या तू स्कूल जा कुरान पाक स्कूल। आंदी मैं नहीं जाना। मैं क्यों नहीं जाना, तेन कोई डर होंगे जो दस। आंदी नहीं मामा मैंने नहीं जाना। फिर इसने बात की तो और मेरी बेटी सबके घरों में गई तो उसने भी यही बताया कि ये वाकया हुआ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੇ जाओ। हमने कहा कोई बात नहीं है, उस्ताद है, उस्ताद का तुमने कहना मानना है बेटा। जब बुलाते थे हाँ जी कभी और भी भेज देते थे? हाँ जी, हमने कहा कि हमें हमारे दिल में तो कुछ है ही नहीं था ना, हमें तो महसूस भी नहीं था कि ये काम होना है। हमने तो कहा उस्ताद है, उस्ताद अच्छा है, एहतराम करो उस्ताद का। हमने तो ऐसे भेजा ना, हमें क्या पता था उस्ताद इतना ही कमीना निकल रहा है कि जिसने हमारी सारी घर वाली लड़कियों को ऐसे कर देना है। आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे? मैं उसे गोली मार दूंगी बस। मेरा दिल अंदर से बहुत दुखता है ऐसी ये हरकत देख के। खुदा का वास्ता मरीम नवाज साहिबा, आप खुद औरत हैं, आपने कहा था औरत मेरी रेड लाइन है, यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस हो गई है। सिकंदर हयात साहब, ये स्कूलों में ये काम हो रहा है। ये देखें इनकी आहो बका सुने, इनकी सिस्कियां सुने कि फिर हाँ जी ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬੱਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ क्योंकि बच्चों को पढ़ने भी नहीं भेज रहे। नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इतने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन, कोई हमें पता ही नहीं चल रहा कि उसकी बेगम को पकड़ा है इन्होंने कि नहीं पकड़ा। हमें कह रहे थे कि हम लोग शाम को इसको पकड़ लेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों ने अपने बाकी बच्चों को भी स्कूल से हटा लिया? नहीं जी हाँ, हमारे बच्चे बाकी भी घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ बेटे जा रहे हैं जामिया में। तो इसने बच्चियों तो को अब आप पढ़ा नहीं रहे? नहीं, बच्चियां इनको घर स्कूल पे भेजेंगे हैं। अब आप? नजदीक तो कोई स्कूल ही नहीं है, कहाँ भेजे हम इसको। मरीम नवाज साहिबा, आपसे दस्त बस्ता दरख्वास्त करते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि इस मामले का जो है नोटिस तो आपने लिया है, इस पे देखें कि हो क्या रहा है, अभी तक क्यों इस पे कार्रवाई नहीं हुई, और इसको जिस तरह से कसूर वाक़े को मिसाली बनाया था, इस वाक़े को भी मिसाली बनाएं, वरना इन बच्चियों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया।